So, Mr. Kamran, Yes, how was your day? nice. Nice. Yes, the weather it's hot today. Yeah, the weather is hot today. Certainly not my type of weather. As compared to Delhi, Hmm. usually Rajasthan temperature is higher than Delhi. Yeah, normally. हमारा पेपर का है ओ last. So, where were we? First, we will go through the homework. Yes, Yeah, what was the homework? homework was myself and what should we select? Why should we select you? And what are your strength and weakness? Um, where do you see yourself in 5 years and how do you handle challenges and do you prefer working alone or in a team? Okay. Did you take help from AI? Little bit, Little bit. Okay. but not more. Hmm. When you check this, you can also visualize Yeah, sure. how I will. much I use. I will understand. I am Kamran Akhtar and I am from India. I am 22 years old. I am studying MBBS course and I am good at zoology. In my free time, I enjoy playing cricket. I have a passion for Deen. That's a short introduction about me. Okay. How do you pronounce this? Zoology. Hmm? Zoology. How do you pronounce this? Passion. राइट इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत थी अभी भी Zoology. Passion. हाईलाइट कर लो आप इन दोनों को ओके प्रोसीड Why should we? वाई Why should we select you? अंडरलाइन दिस ओके Why should we select you? Because I am capable for this and I already qualified in NEET and I got fantastic marks, but my rank was not good. So I'm not able to study in India on the behalf of rank, but I have an opportunity to get admission in this university. Thank you. ये अच्छा है इसलिए ये अच्छा है है कि आपने अपनी बुराइयां नहीं करी हाँ जैसे कि आप पहले कर रहे थे है ना ये लेकिन खुद से लिखा हूँ हाँ बहुत अच्छी बात है आपने सही अपने आप लिखा है सो ये सही अप्रोच होती है ठीक है कि अपने आप को कम नहीं दिखाना है मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन करी मैंने अच्छे मार्क्स भी आए बट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया इस वजह से मैं वहाँ पर कर रहा हूँ अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसे दिखाना है सामने वाले को ना ओके सही So what is your strength and weakness? My strength is Deen because I am very spiritual person and I learn Deen and then I apply in my daily life. इसमें एंड देन अप्लाई इन माय डेली लाइफ भी ठीक Applying नहीं 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 जैसे लिखा हुआ था विदाउट आई हाँ सही दैट था वाज आल्सो क्योंकि आपने आई यहाँ बोल दिया तो वो चल जाएगा कि आई लर्न दीन एंड अप्लाई इन माई डेली लाइफ ठीक then हटा दे नहीं एंड then देन भी अप्लाई सही वो भी ठीक ठीक है हाँ then apply in my daily life. हम्म, Deen guide me to follow right path and यहाँ एस लगेगा गाइड करता है दीन गाइड्स मी guides me to follow right path and connection with God. Deen teach us how to avoid bad things राइट and prepare for judgment day. इसको हेयर आफ्टर भी बोल सकते हैं हाँ एक उसका दूसरा वर्ड होता है हेयर हेयर आफ्टर यहाँ के बाद and my weakness is sleeping more and sleeping is important for our sleep cycle because when we complete our cycle we feel fresh and our mind working smooth. Nowadays I work वर्क्स smooth. वर्क्स ये बाद में लगाए थे आईएनजी नीचे देख रहे हैं नीचे है हाँ work smooth. Nowadays I sleep a lot and because of this I attend my class very late and I did not get up early in the morning. ठीक है ये जो सेंटेंस होता है ना इसमें आ भी लगता है नाउ अ डेज Nowadays हाँ ये एक प्रॉपर पूरा एक वर्ड की तरह है ये आजकल आजकल की जगह नाउ डेज बोला जाता है ठीक है ये आप इसको फिक्स कर लीजिए कि ये एक साथ एक तरह से है एक चीज़ कि नाउ डेज मतलब आजकल ये अचानक से शिफ्ट क्यों हो गया यहाँ कुछ इरादा था कि और कुछ लिखने का यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना था अच्छा यहाँ तक था स्ट्रेंथ का
यहाँ से वीकनेस का। अच्छा ये यहाँ से लिखना चाहिए था, तो मैं ऊपर से ही लिख दिया, इसलिए कंटिन्यू था। अच्छा अच्छा। ये यहाँ से लिखता ना, हम्म। फिर यहाँ से कंटिन्यू होता। हम्म, सही है। ये भी आप खुद से ही लिखे थे। सही है। यूज वो कहाँ कर रहा था, एआई कहाँ यूज कर रहा था? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के लिए सर्च किया था, बट अच्छा अच्छा। वो अप्लाई नहीं किया, हम्म। तरीका बस देखा था। नहीं सही है, आप अपने आप ही जितना लिखोगे उतना ही बेटर है। अब बाकी का ये वाला तो आप लिखवाए थे, बट थोड़ा बहुत ऐड किया। Where do you see yourself in 6 years? I see myself as a very successful doctor in हम्म, 6 years, and ठीक। I also want to be able to help poor people in whatever way I can, हम्म। because nowadays हम्म। in my district, doctors are scamming the patient and make money by high bills. यहाँ आर लगा दीजिए, Doctors are. क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि कर रहे हैं, मतलब अभी भी चल रही है ये चीज़। तो नाउ डेज इन माई डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स आर स्कैमिंग द पीपल, स्कैमिंग द पेशेंट्स। हाँ सही है सही है। Patients and make money by high bills. ठीक है। सही है. हम्म, How do you handle challenges? ओके। If there is something in my control, then I go to the root cause of that challenge and try to figure out how can I resolve the issues. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? Issues. हम्म। Issues. शाह लगता है, Issues. इसको हाईलाइट कर लीजिए। Issues. Do you prefer working alone or in a team? हम्म। Well, I prefer both, because if you are capable to do, if I लिखना चाहिए था मुझे, if, हाँ? सही है। If you are capable to do something, then you will do. But working with the team is best, because there is team who have great ideas and manpower, no workload. Okay. Well, I prefer both because if you are capable to do something, then Then you will do. हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, but working with the team is best, because there is team who have great ideas and manpower, no workload. इसमें ऐसे कर सकते हैं कि well, I prefer both because if you are capable to do something, कॉमा लगा के great. Great. यहाँ से great. हाँ, इसके आगे Something great. नहीं, कॉमा लगाकर हाँ. फिर आगे great, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाला नहीं, ये तो क्वेश्चन है। हाँ, ये great. If you are capable to do something, great. But working with the team is, इसको काट देना। हाँ ये सब काट दें। कि इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो भाई बढ़िया अच्छा, है ना। बट वर्किंग विद, इसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं, इफ यू आर डू समथिंग ग्रेट, अदरवाइज लिख सकते हैं, अदरवाइज वर्किंग विद द टीम इज बेस्ट। कि भाई अगर नहीं कर सकते आप काम तो फिर टीम के साथ काम करना। अदरवाइज वर्किंग विद द टीम इज बेस्ट, हाँ, बिकॉज देयर इज टीम हु हैव ग्रेट आइडियाज एंड मैन पावर, नो वर्क ओवरलोड। नहीं ठीक है, वर्कलोड ठीक है। सही है ना, ये भी खुद सही है। सही है, बहुत बढ़िया है। घर पे आपको सुकून से टाइम मिल जाता है सोचने का। आने से पहले ही बनाता हूँ क्योंकि याद रहेगा। हाँ सही है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो कल हमारा ये हो गया था। नाउ वी विल मूव टू दिस डे। एक काम करें, टेक अ फोटो ऑफ दिस। सो दीज आर द फ्रेजेस एंड वोकेबुलरी फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो जब आप घर पे जाएंगे तो इससे गो थ्रू करना आप, और सबको पढ़ना ध्यान से। तो इसमें ऑलरेडी पूरा मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग एंड ग्रीटिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा हो गया, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू टुडे, और आई एम एक्साइटेड टू बी हेयर टुडे। ये शॉर्ट एंड सिंपल है, अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जब भी आप बताते हैं तो शुरुआत कैसे करनी है, आई हैव अ बैकग्राउंड इन, है ना,
तो लेट्स से आप एमबीबीएस वगैरह क्लियर करके आगे बढ़ चुके हैं, अब आप और कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, अब वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यू कैन टेल देम आई हैव अ बैकग्राउंड इन एमबीबीएस या तो फिर इन मास्टर्स और जो भी जो कुछ आप, कंप्लीट हो हाँ चुका रहेगा, हाँ वो जो आप कर चुके हैं। आई स्पेशलाइज इन, कोई डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड हो, पीजी करने के बाद। हाँ ठीक है, माई की स्ट्रेंथ इज, अब जैसे कि जूलॉजी है, आप उसको अगर आगे लेके चलेंगे, आप वहाँ पे अगर उसको थोड़ी फोकस देंगे, उसको एज अ सब्जेक्ट चूज करेंगे क्योंकि आपको अच्छा भी लगता है, तो देन यू कैन यूज दिस कि माई की स्ट्रेंथ इज जूलॉजी, है ना। और लेकिन हाँ, इसको यूज वहीं करना है जहाँ लेट्स से जॉब के लिए, तो क्या मतलब लेट्स से उसी से रिलेटेड आप आगे कहीं बढ़ रहे हैं, जैसे जूलॉजी से रिलेटेड ही आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं या लेट्स से कोई जॉब करने हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब आप अगर ये चीज मेंशन करोगे तो थोड़ा सही लगेगा। अदरवाइज लेट्स से जॉब और किसी चीज की है, आप बोल दो कि मेरी स्ट्रेंथ तो जूलॉजी है, तो कहेगा भाई तो फिर तुम फिर उसके उसमें इसमें जाओ, इधर कहाँ है? यहाँ पे क्या करने आ रहे हो, है ना। तो ये वहां पर यूज कर सकते हो आप। आई हैव एक्सपीरियंस इन, ये तो है ही कि भाई आप पे अगर एक्सपीरियंस ही हो गया है तो फिर तो आप बता सकते हो। स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स के बारे में, आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड, है ना, these are very nice lines and you can use them whenever you need to. I work well under pressure, ये इंजीनियर्स के लिए होता है। वर्कलोड नहीं रहा हाँ, ये इंजीनियर्स के लिए होता है कि जब प्रेशर ज्यादा होता है ना तब तो अच्छा, फिर बंदा क्या करता है? तब अच्छा काम करते हैं। आई वर्क वेल अंडर प्रेशर, जब जब मेरे ऊपर प्रेशर प्रेशर झेल पड़ता है, पाएगा कि नहीं, इंटरव्यू वाला हाँ ये भी तो नोटिस हाँ वही करेगा। तो, जब मेरे प्रेशर पड़ता है जब मैं ज्यादा अच्छा काम करता हूँ, इंजीनियर्स का होता ही है सीन। आई एम अडेप्टेबल एंड क्विक टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। एक हो गया आई इंजॉय वर्किंग इन अ टीम एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंटली, है ना, ये चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर सकते थे। सो आप जैसे कि इन सब का यूज़ करके भी आप उसको फिर इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई ये लाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है वहाँ पे, तो वहाँ फिट हो जाएगी, मैं वहाँ लगा ये लगा देता हूँ ना। फिर टॉकिंग अबाउट वीकनेसेस, अब पोलाइट वे क्या होता है, अपनी पोलाइट के अपनी वीकनेसेस के बारे में पोलाइटली किसी को बताना, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम बैड एट, आई एम बैड एट बोलने के बजाय से वन एरिया वन एरिया आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव इज। इसमें बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कि ठीक है आप मानते हो कि हाँ भाई मेरी अपॉर्चुनिटी है, मेरी कुछ कमी है, लेकिन मैं उसमें काम कर रहा हूँ, ये है मेन बात। ये सही बात और ये मैटर करता है कि चलो ठीक है, है। आपको सुधार एक तो में, आपको पता हो कि आप में कमी क्या है, और सुधारने दूसरा, में लगे हुए भी हाँ हो। और दूसरा ये कि आप उसमें के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हो उसको सही करने के लिए, आप मान के बैठ नहीं गए कि हाँ मैं तो हूँ ही बुरा जैसे वो लोग करते हैं ना, वैसा नहीं है, ठीक है। समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स बट आई एम लर्निंग टू बैलेंस दिस, कभी कभी लोगों में कुछ ऐसी छोटी सी खामी होती है जो ऐसा जितनी कोई बड़ी बात होती नहीं, लेकिन उस पर लोग फोकस बहुत करते हैं कि यार ये मेरी बहुत गलत आदत है, छोटी मोटी बात होती है, तो उसके लिए ऐसे यूज कर सकते हैं कि समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स बट आई एम लर्निंग टू बैलेंस दिस, ठीक है। फिर एक्सप्लेनिंग गोल्स एंड फ्यूचर प्लान्स, वहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं, इन द नेक्स्ट 5 years आई होप टू ग्रो प्रोफेशनली एंड टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये हो गया। एक हो गया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रोल एंड डेवलपिंग माई स्किल्स फर्दर, ये उस जगह पे यूज कर सकते हो आपके जहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत हो, है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं इस रोल पे जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो करना चाहता हूँ, और फिर अपनी स्किल्स को भी थोड़ा और डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है। एक हो गया हैंडलिंग सिचुएशंस एंड चैलेंजेस, इसमें ऐसे बोलेंगे व्हेन आई फेस अ चैलेंज आई फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, देखो वही बात आ गई ना जो हमने करी थी कि जो प्रॉब्लम है उसको पहले समझने की कोशिश करता हूँ कि बात क्या है, वही रूट रूट कॉज कॉज। वाली बात आ गई है ना। आई बिलीव इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस रेदर देन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हो। आई स्टे काम एंड लुक फॉर प्रैक्टिकल स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड, ये बात सही है ना। सबसे पहले अपने आप को काम रखना है, हाँ, फिर पैनिक प्रैक्टिकल नहीं स्टेप्स होना क्या है, है। हाँ हवाई बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकता हूँ क्या आगे Practical बढ़ूँ steps। इसमें, है ना, ठीक है। फिर प्रोफेशनल फिलर्स, इंस्टेड ऑफ कैजुअल वंस लाइक और यूजिंग लाइक, व्हाट वी कैन से, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आई अब लाइक आप, फुटबॉल बोल सकते हैं, आई लाइक फुटबॉल ऐसे। हाँ वो तो नहीं, वो जैसे कि ये फिलर्स यूज करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, वो हम करना चाह रहे हैं
कि जैसे कि लाइक ये सब बोलने के बजाय अच्छा, हमें क्या इसके बोलना है। बजाय बोलना है इंस्टेड ऑफ। हाँ, क्योंकि दैट डज नॉट साउंड प्रोफेशनल ना। हाँ, तो फिर हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने कुछ पूछ लिया, अब आप एकदम से सोचने लग गए चुपचाप बैठ कर, उसके बजाय माइंड में ये रखो ऑलरेडी कि जैसे किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, है ना। अब आप ऑन द बैक ऑफ योर माइंड आप सोच भी रहे हो कि मुझे क्या बोलना है, और क्योंकि ये आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन या लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, इन चीज़ों की, कि वो आपको सोचना ही नहीं पड़ा, वो तो आपने ऑलरेडी बोल दिया, और उन कुछ माइक्रो सेकेंड्स में आपने बात सोच भी ली, है ना। ऐसे यूज होता है। और एक हो गया, व्हाट आईड लाइक टू हाईलाइट इज, है ना, अपनी बात को शुरू करने से पहले इस तरह से कि मैं इस बात पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि, और जब तक सोच लिया कुछ भी छोटा सा, एक और के, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से, ये वही बात घुमाने वाली बात हो गई कि अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ बोलना, कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से, और जब तक सोच लिया कुछ और फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, फिर माइंड में आता ही रहता है। एंडिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू एंड कैसे करते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, और आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ये भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग इंटरव्यू ले लेते हैं फिर बोलते हैं कि ओके थैंक यू, आगे बस कुछ यही बताया बोल ही के नहीं चला करना क्या जाएगा। है। तो उससे बोलते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, कि भाई बता देना जो भी बता हो, देना हाँ, जरूरी है, सही बात है। फीडबैक दे देना ना। आप एक काम करो, एक बार मुझे ये सब पढ़ के बता दो, मुझे थोड़ा देखना है कि किसी कुछ प्रोनाउंसिएशन इशू तो नहीं किसी में। Phrases and vocabulary for interviews. हम्म, Starting and greeting. Good morning. Thank you for giving me this opportunity. It's a pleasure to meet you. I'm excited to be here today. Talking about myself. I have a background in MBBS. I specialize in nephrology. इसको आप लिख लीजिए, ये वाला वर्ड। Specialize. और इसको एक दो बार ठीक से प्रोनाउंस। Specialize. हाँ, एक तो वही जो शुरुआत है उसमें वो Specialize. एस से नहीं होगी ना, Spe- स्पेशलाइज्ड। Specialize. अच्छा, उससे मुझे याद है वो टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करी थी, दिया था। सुनाइए, ऐसे ही बगैर देखे। She मैं sells. सी थोड़ी, She हाँ। sell. She sells the seashell on the seashore. हाँ। तो सही तो है। नहीं, सही तो है बट उसको पूरा एक कंटिन्यू बार, बोलने के लिए। पूरा एक बार। She she sell the seashore. लिख लिख के शी बोलो। सेल द सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी She सेल। shall the seashore. She shall. देखो एक एक काम करो, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, आप फोकस पता है किस पे करो, अपने माइंड में एक पिक्चर बना लो कि एक लड़की है, वो सी-शोर पे खड़ी हुई है, हाथ में सी शेल्स लेके कि इसको बेचना है। अब आप बस किसी को ये बात बता रहे हो उसके बारे में, कि उसके बारे में सोचो अब, कि शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। She sell the seashore on the seashore. She sell the she sell the seashell. सी शेल्स, Seashell होगा ना? हाँ सी शेल्स, She sell the seashell हम्म, on the seashore. हाँ। हाँ, हो जाएगा 4-5 हाँ, बार। और आप प्रैक्टिस करना है इसको, है ना, क्योंकि उससे थोड़ा सा जबान साफ होगी। ठीक है, तो ये लिखना, आप लिखना, लिखिए आपने, ये क्या था ये, Specialize. हाँ ये लिखो आप, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेना। कैमरा को पता नहीं क्या हो गया यार। Specialize in. एस से क्यों स्टार्ट हो रही है, एस थोड़ी बोला जाएगा। आप बोलिएगा एक बार। स्पेशलाइज, Specialize. हाँ, Specialize. इससे स्टार्ट होगा ना, आधा सा से, हाँ। बस इससे ही स्टार्ट करिए। I specialize in MBBS. I specialize in nephrology. ठीक है, My key strength is more. My key strength is practice more and more on nephro branch. ओके, इसको भी एक बार थोड़ा सा, Strength, स्ट्रेंथ, strength. I have experience in the nephrologist branch.
ठीक। सही है। स्ट्रेंग्थ्स एंड स्किल्स। इसमें देखो अभी भी एस में, सब में एस एस से आप शुरू कर रहे स्ट्रेंथ, हो। हाँ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंग्थ्स, एंड, स्ट्रेंग्थ्स एंड स्किल्स, हाँ हाँ, है ना, एस से स्किल्स, शुरू ना हो। स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। स्ट्रेंग्थ्स एंड स्किल्स। ठीक है। I am highly motivated and results oriented. यहाँ देखो गड़बड़ हो गई। Results, हाँ, जल्स है ना, हाँ, जल्स नहीं, जल्स। results oriented. हम्म, I work well under pressure. हम्म, I am adaptable and quick to learn new things. ठीक है। I enjoy working in a team and also independently. ठीक है। Talking about weakness on polite way, in polite way. Instead of saying I am bad at, say it. One area I am working to improve. Improve इस is. हम्म, Sometimes I focus too much on details, but I am learning to balance this, हम्म, explaining goals and future plans. हम्म, In the next 5 years, I hope to grow professionally and take a more responsibilities इसको कैसे बोलेंगे? professionally. Professionally. हाँ, शाह आएगा ना यहाँ पे। Professionally. हम्म, Professionally. I'm looking forward to contributing to this role and developing my skills further. हम्म, Handling situations, challenges. हम्म, When I face a challenge, I first try to understand the problem clearly. ठीक है। I believe in finding solutions rather than focusing on problems. इसे कैसे करें? Solutions, हाँ, शाह होगा। solutions. हम्म, I stay calm and look for practical steps to move forward. हम्म, ठीक। Professional fillers instead of casual ones like. That's a great question. Let me think. Let me think for a moment. What I had like to highlight is. आइड, huh? आइड, आई हैड नहीं है, आइड। I'd. इसको I had ही बोलेंगे ना मन। आई वुड का है शॉर्ट I फॉर्म। would का है। और आई नॉट का वुड, रहता तो I WN कॉमा T हो जाता। आई वॉन्ट का होता। वुड नॉट का नहीं। हाँ, वुड नॉट वही का हाँ। होता, वॉन्ट। I उसका पॉजिटिव में ID लिखेंगे ना। I कॉमा D। हाँ, आई वुड और आई वुड नॉट, ये दो चीजें हो गई। तो वुड पूरा का पूरा वुड हट गया, और आई के ऐसे करके डी लग गया, आई। निगेटिव में रहता तो IWON और कॉमा T हो हाँ, जाता। आई रहता और W WOULD, के फिर जगह NT, वुडंट। ये वाला होता तो इसको क्या बोलेंगे? WON कॉमा T। विल नॉट, आई वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट। आई वॉन्ट। ठीक। जैसे कि कोई बोले आई विल नॉट, तो उसकी जगह पे ये ILL और N इसको हटा दिया, क्या बचा? वॉन्ट। अच्छा, N इधर आएगा थोड़ा सा, वॉन्ट। ठीक। I'd like to highlight is what I'd like to highlight is from my experience I would say ending the interview, thank you for your time today. It was a pleasure speaking with you. या प्ले, इट वाज अ It was a pleasure यर, pleasure जर्नी यर। pleasure आप बोले हो जर, pleasure। हाँ, और यर है प्लेजर। ज बोलना है कि जा बोलना है? जा बोलना है, जर जर, जा भी नहीं बोलना है, यर बोलना है। pleasure। देखो, एक होता है जा, एक जाल होता है, एक जे होता है, एक जिम होता है। नहीं, वो तीनों नहीं है। एक ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक होता है जर, जर। नहीं, एक होता है जर, जो सिंपल एक जर। जेड वाला जर। हाँ, एक जर होता है, हाँ। एक जर होता है। एक जर होता है, हाँ, जर और हाँ, जर। तो जर और जर के बीच में है जर। जर। प्लेजर, Pleasure। या, प्लेजर। हाँ, इस तरह से Pleasure। प्लेजर। प्लेजर। हाँ, pleasure to meet you, it's a pleasure to meet you। It was pleasure speaking with you. हाँ, It was a pleasure speaking with you. हाँ, वही है कि थोड़ा ट्राई करना है, हाँ। जा इतना नहीं है, या ना जा, जॉय है ना जा। हाँ। जॉय प्लेजर। उसके बीच का जा। प्लेजर। हाँ। प्लेजर। I look forward to hearing from you soon. ठीक।
तो ये इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन यूज देम. ओके, नाउ we move forward to the topic of our day 16, which is work and study conversations. Work and study conversations. Topic. Yeah, that's the topic. We will start with the essential vocabulary and phrases. Okay, some essential vocabulary and phrases. Okay, so next हो गया asking questions. ये वोकेबुलरी नहीं लिखा है. नहीं, इसी के अंदर ये है कि आस्किंग क्वेश्चन. अगर आप जैसे किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर could you please explain that again? Could you Could you please explain that again? Question mark. I didn't understand. इसी नहीं नहीं, मतलब next. I didn't understand. DIDNT. जैसे कि लिखा तो जाएगा didn't, हाँ. बट ये इसका सेकंड वाला D जो है साइलेंट है, तो प्रोनाउंस कैसे होगा? Didn't. नहीं, सेकंड वाला D साइलेंट है, इसकी आवाज़ नहीं आएगी. I didn't. Didn't. हाँ, I didn't ये understand. मान लो कि ये D लिखा हुआ ही नहीं है, हाँ. तो DINT क्या हुआ? Didn't. Didn't. इस तरह से बोला I जाएगा. didn't understand. हाँ, I didn't understand. Could you clarify? Clarify? Question mark. एक हो गया. Next, can you give me an example? Give me a Give me an example. example. Question mark. ठीक है, इस तरह से आप पोलाइटली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अब नेक्स्ट लिखें आप एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग पोलाइटली. agreeing, agreeing, AGREE agreeing, ING. हाँ, Agreeing and disagreeing politely. I agree with that because because इतना ही है. नेक्स्ट, I see your point. I I see your point, see your point. comma, but I think. बस. तो इसमें बता रहे हैं कि किसी से आप अग्री कर रहे हैं, तो ऐसे करके बता सकते हैं कि हाँ भाई, आई अग्री विद यू बिकॉज इसलिए अग्री Because करता हूँ. reason भी उसको हाँ, बताना. अब किसी से डिसएग्री कर रहे हैं, तो Right, उसको उसके मुंह पे बोल देना कि नो दैट्स रॉन्ग, ये हाँ. सही है, ऐसे बोलने के बजाय प्यार से ऐसे बोलेंगे, आई सी योर पॉइंट, कि हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक, और फिर अपनी बात बोल. ठीक है. मतलब एक तरह से यही हुआ कि मैं एग्री नहीं, हाँ प्यार से बोल. हाँ, कि भाई ठीक है मैं सुन रहा हूँ आप उसको क्या कह बुरा रहे ना हो, लगे. लेकिन ऐसी बात है ना. नेक्स्ट हो गया डिस्कसिंग टास्क्स.
ठीक है। tasks. सो ये आप लिखेंगे लेट्स डिवाइड द वर्क। ये ज़्यादातर टीम में काम आने वाली चीज़ है। लेट्स डिवाइड द वर्क। नेक्स्ट हो गया आई कैन हैंडल दिस पार्ट। नेक्स्ट हो गया व्हेन इज द डेडलाइन। When व्हेन इज द डेडलाइन। is the हाँ, क्वेश्चन मार्क। हाँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से किसी भी टास्क जब हम कोई कर रहे हो या किसी टीम में हो तो उसमें इस तरह से कुछ बातें करी जा सकती हैं। ये वाले एक बार मुझे पढ़ के सुनाएं सर। for asking questions? Could you please explain that again? I didn't understand. Could you clarify? Can you give me an example? For agreeing and disagreeing politely. I agree with that because I see your point, but I think discussing tasks. Let's divide the work. I can handle this part. When is the deadline? सही है. ठीक। इसको सर ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं. Would you mind? Can you explain it again? ऐसे भी तो बोल सकते हैं. वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग इट अगेन। हाँ, इस तरह से बोल सकते हैं। बोल सकते हैं. हाँ, कि वुड यू माइंड बोल दिया तो फिर कैन यू की जरूरत नहीं है। Would you mind explain it again? एक्सप्लेनिंग Explaining again. इट अगेन या दिस अगेन। ठीक है। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दिस अगेन। ठीक है जी। You have to prepare a 1 minute talk, Okay. For 1 or 2 minutes talk, and the topic would be, please note down the topic. A time I worked a time I work in a group and what I learned from it. Learned from it. ठीक है। तो अब आप सोचिए और इस पे कुछ बनाएं, कम से कम 4-5 लाइंस का तो बनाएं। मेक श्योर जो अभी हमने ऊपर ये चीज़ें पढ़ी है ना, इनका कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। बोले. हाँ, आप ऐसा करें तो लिख लें, लिख के फिर बोलेंगे तो बेटर लिख- रहेगा। हाँ, सही. लिख लीजिए।
बोलते हैं. जी. A time I work in a group. First of all, we divide the work. I can handle my part. Then I can handle my part, and then there is no workload. Everyone do own part. Everyone do their होगा ना यहाँ, their own part, and in a group we discuss and complete our work easily. And I learn teamwork. Yeah, group work is better than alone. Uh, there is no workload, no pressure, and how to be. I become sincere. ओके. Learn किया इसमें उनसे. ठीक है, टॉपिक इसमें ये था कि अ टाइम आई वर्क इन अ ग्रुप हम्म. एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट. ठीक है. इसमें से आप बोले थे यूज करने हैं. तो एक आपने ऐसे करा कि अ टाइम आई वर्क इन अ ग्रुप. जब हम ग्रुप में कोई काम करेंगे, सबसे पहले अपना काम को डिवाइड करेंगे, फिर अपना ईच पार्ट को खुद से करेंगे. ठीक है, तो इसमें इसको शुरुआत ऐसे होनी थी कि आपको द से शुरू करना है. द टाइम. द टाइम व्हेन आई वर्कड इन अ ग्रुप, क्योंकि ये एक उस वक्त के बारे में बात हो रही है ना, कि जब आपने एक ग्रुप में काम किया था और विथ आप क्या सीखे थे. विथ ना तो द टाइम व्हेन आई वर्कड वर्क. वर्क इन अ ग्रुप. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी डिवाइडेड. डिवाइडेड द वर्क. क्या हमने ये करा. आई कैन हैंडल्ड. आई हैंडल्ड, आई कैन नहीं, आई हैंडल माई पार्ट. हैंडल्ड. फिर आप बोलोगे देयर वर नो वर्कलोड. देयर वाज. देयर वर. वाज नहीं था. देयर वाज नो वर्कलोड. एवरीवन डू देयर ओन पार्ट. हाँ, एवरीवन डज आएगा. डज. हाँ. इन अ ग्रुप वी डिस्कस. सीखने का यहाँ से आ गया. अ टाइम व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट. यहाँ से सीखने का. ठीक है. इन अ ग्रुप वी डिस्कस एंड कंप्लीट आवर आवर वर्क इजली. ठीक है. तो सबसे पहले ये सीखा, ग्रुप में अपना काम इजली हो जाता है और एक दूसरे से मशवरा भी करते हैं. और तीसरा, वो पांचवा, आई लर्न टीम वर्क या ग्रुप वर्क इज बेटर देन अलोन. बेटर देन बेटर देन वर्किंग अलोन. वर्किंग अलोन. वर्किंग अलोन. नो वर्कलोड. देयर इज नो वर्कलोड. There is no workload and not pressure. एंड नो प्रेशर. And no pressure. And how to be sincere with your work. एंड वी लर्न फिर आई ये वाली पूरी बात. How to be sincere with your work. ठीक है. ओके, अब हम ऐसा करते हैं. ठीक है, तो हम डे 16 का और देख लेते हैं आज. उसका होमवर्क लिखा आपने. अच्छा, होमवर्क अभी मैंने बताएंगे. होमवर्क देख लीजिए. हाँ, नहीं, डे 16 का ही तो था ये. हाँ, इसका होमवर्क कहाँ गया यार. ये रहा. राइट 5 सेंटेंसेस. और करवाएंगे क्या इसके बाद कुछ? हाँ, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ डे 17 देख लें. यहाँ लिख दे. एक मिनट, जब 16 हो गया तो 17, 18, 19, 20 4 दिन रह गए ना. हम्म. तो 4 दिन तो जब भी कवर हो जाएंगे हमारे. ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. हम्म. हाँ, तो फिर ठीक है, रहने दो उसको. 16 ही ठीक है. अभी हम कुछ स्पीकिंग एक्टिविटी कर लेते हैं.
टेक्नोलॉजी. Do you think mobile phones are making Making people smarter or lazier, or smarter or lazier, and नहीं और. ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. दिस इज योर टॉपिक. टॉपिक है कि क्या सोचते हैं आप, जो मोबाइल बनाते हैं वो तेज दिमाग के होते हैं या फिर स्मार्टर होते हैं या फिर लेजियर होते हैं, यही हुआ ना. जो मोबाइल बनाते नहीं है, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेकिंग का मतलब ही हुआ यूज करना. मोबाइल फोन्स हाँ. आर मेकिंग पीपल. और मोबाइल फोन्स लोगों को बना रहे हैं अच्छा, स्मार्ट या लेजी. स्मार्ट या स्मार्टर और ये यहाँ पे मेकिंग का मतलब बना रहे ही आ रहे हैं, बट ये आ रहा है कि मोबाइल फोन बना रहा है लोगों को स्मार्ट या लेजी. ठीक है. मोबाइल फोन बना रहा है पीपल को हाँ, स्मार्टर स्मार्ट या या लेजी लेजी. है. तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट बना रहे हैं लेजी बना रहे हैं? बहुत. अब आप सोचो और थोड़ा सा डिटेल वे में जवाब दो. लिख लेता हूँ पहले. हाँ, आप लिख. When we use mobile phone for study purpose and talking purpose, then it's good for us. There are different people who use it negatively, like visiting bad websites and a scam with phone calls, etc. Using of mobile phones for game purpose is very bad because it's utilize our maximum time, so we can't complete our work on time. Excess use of phone destroy our eyes and thinking ability and make us lazier day by day. ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल है, अच्छा है. इसमें एक तो हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? Purpose. PEOPLE. Purpose. PEOPLE. People. पीपल. ठीक है. People. SCAM. Scam. ओके. आपने एक वर्ड बोला इट्स यूटिलाइज. It's utilize our maximum time. तो देखो, यूटिलाइज का मतलब होता है कि इस्तेमाल करना, या तो फिर एक तरह से पॉजिटिव वर्ड होता है ये, कि काम में लेना है. किसी चीज़ को यूटिलाइज कर लिया, उसको काम में ले लिया, है ना. तो इसका क्या होगा? बट यहाँ तो आप Bad नेगेटिव thing. बात बोल रहे हैं ना. तो इट Waste our maximum इट time. हाँ, इट वेस्ट, या तो फिर इट टेक्स अप. Waste our maximum time. हाँ, और इट्स नहीं होगा, ओनली इट होगा. तो क्या बना सेंटेंस फिर? It waste our maximum time. नहीं, यूजिंग एट क्या मोबाइल यहाँ था using of mobile अच्छा. phones for game purpose is very bad because it waste our maximum time, so we can't complete our work on time. तो इसमें वेस्ट के आगे भी एक एस लगेगा, जिसका मतलब हुआ कि बर्बाद करता है. वेस्ट का मतलब हुआ बर्बाद, और वेस्ट का मतलब हुआ बर्बाद करता है. Waste. हाँ, एस और लगा दीजिए. वेस्ट आर मैक्सिमम टाइम. So we can't complete our work on time. Excess uses होगा ना, uses होगा ना. यूजेज हाँ कह सकते हो. USAGE, सॉरी, USAGE जो होता है यूजेज. Uses of phone destroy our eyes and thinking ability ठीक. and make us lazier day by day. मेक्स. Makes. सही है. मेक का मतलब बनाना. बनाना. मेक्स का मतलब बना रहा है. बना रहा है. तो एस वहाँ पर जैसे कि अभी हमने उस वेस्ट का मतलब बर्बाद करना. वेस्ट Waste मतलब का बर्बाद, मतलब वेस्टेज मतलब कर रहा है, बर्बाद. बर्बाद कर रहा है ना. तो जो चीज़ कर रही है उसमें एस लगा देते. गो का मतलब जाना, गोस का मतलब जाता है ना. तो वही बात हो जाती है. ठीक है, बढ़िया है. होमवर्क आपने लिख लिया था? नहीं नहीं लिखवाया था. ये बताया नहीं था मैंने. अच्छा, ठीक है, ठीक है. ये लिख लीजिए. राइट 5 sentences using could you please
Could you please question mark? And I think in work or study context, ठीक है ना? So that's it for today. I'll see you on Tuesday. तो बचे हुए डेज में आपको पिछला सारा रिवाइज भी कर लेना है ना? यूटिलाइज दिस टाइम इन दैट वे.